Good morning, student. Today we will read economics, chapter 2, the sectors of the Indian economy. Okay. आज हम लोग अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 पढ़ेंगे. चैप्टर 1 we have already studied. In this chapter, whatever we are going to read, they are the sectors of economic activities. Okay, यानी जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको ग्रुपिंग यानी क्लासिफाई है ना. यानी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज और द 3 ग्रुप्स. दे आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ओके, more or less that is called sector. So today we will read this and the economic interdependence. Okay, economic interdependence ki how the one sector is interdependent upon the other. Okay, and the comparing the 3 sectors. Okay, how to compare that means the GDP, the gross domestic product. Okay, and historical changes and primary, secondary and tertiary sector in India. Okay, where are the most of the people employed, like that, how to create more employment. So such and such things which we will study today. So let's start the chapter 2, sectors of the Indian economy. Okay, sectors of economic activities. The activities which are conducted with the objective to earn money. Okay, mind that. Objective to earn money are called economic activities. है ना. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न मनी, दैट इज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक activities. Okay, people in India are engaged in various economic activities. बहुत सारे क्रियाकलाप हैं ना, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. Some of these activities produce goods and other produce services. है ना. तो कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे बीइंग अ टीचर, द टीचर प्रोड्यूस व्हाट, which of the things? No, nothing else. The teacher produce what? The service. Doctors, like that, lawyer, है ना, anyone, है ना. यानी वो things produce ना कर करके service produce करता है. Okay, either goods or the services. Activities are classified in various groups according to their common attributes. Okay, which are known as sectors. What are sectors? All economic activities can be classified into 3 sectors, and economic activities can be classified in 3 different ways. Okay, 3 तरह से ये the 3 different ways है. क्या है? एक तो पहला आधार है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, and the next organized and organized sector, and the lastly public and private sector. So in this chapter these are the such and such subject matter which we will study that. So let's start the first प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यानी प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है एंड टर्शियरी सेक्टर क्या है. ओके, the primary sector or the economy involves conversion of the natural resource into primary produce. Okay, this includes agriculture. Primary activities में क्या क्या आता है? Mind that agriculture, forestry, fishing, mining and extraction of oil and gas. Okay, main रूप से agriculture, है ना, farming, कृषि. These activities are directly associated with nature. और ये क्या होता है? डायरेक्ट नेचर से एसोसिएटेड होता है. फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन वी डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. ओके, इन डेयरी, take another example. In dairy we depend on the biological process of the animal and availability of fodder, etc. For minerals and ores we depend upon mines. No, it is also called the agriculture and related sector. So this sector yani primary sector is also called the agricultural related sector, agricultural and related sector. Okay, it is called primary sector. Why it is called primary? Because it forms the base for all other products
बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, है ना, यही बेस होता है, अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसका ये बेस होता है। दैट्स वाई दिस सेक्टर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, है ना। आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यह बेस कैसे है ना। द सेकेंड सेक्टर दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। यानी सेकेंडरी सेक्टर को क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, और प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ओके, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। एंड सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। Industrial sector includes those economic activities, okay. Secondary sector of the economy or the industrial sector includes those economic activities that create a finish, है ना, and tangible products and the tangible products, okay. और सेकेंडरी सेक्टर को क्या क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को द प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर गुड्स, ओके। ये और इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर। लाइक दैट द सेकेंडरी सेक्टर दैट इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। प्राइमरी, माइंड दैट, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रियल, ओके। प्राइमरी में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स नेचुरल गुड्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नेचुरल गुड्स, whereas the secondary produces manufacture goods, okay. In secondary sector produces manufacture goods, okay. This includes manufacturing and construction, okay. Secondary sector includes manufacturing and construction. Natural products are changed into other forms, okay. Natural products are changed into other forms through manufacturing which may take place in a factory, है ना। वो सिर्फ क्या फैक्ट्री में ये होता है, फैक्ट्री हो या फिर वर्कशॉप हो या एट होम हो, है ना, डजंट मैटर, बट मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ओके। एग्जाम्पल आर यार्न एंड क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन, है ना, फ्रॉम कॉटन, कॉटन ले लीजिए, कॉटन क्या है, नेचुरल चीज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है कॉटन ना, उससे जो वीविंग होता है क्या, क्लोथ और यार्न, लाइक दैट। उस दूसरा एग्जांपल सुगर और गुड़ फ्रॉम शुगर केन, शुगर केन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, और उससे शुगर या गुड़, है ना, वो मैन्युफैक्चर होता है, लाइक दैट। Since the development in secondary sector became associated with different kinds of industry, it is also called the industrial sector. That's why this is called industrial sector, okay. The next, that is the tertiary sector, okay. The next is tertiary sector. वो क्या होता है, tertiary sector that help in the development of primary and secondary sectors are covered in टर्शियरी सेक्टर। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में इसका रोल प्ले करता है ये टर्शियरी सेक्टर। दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ओके, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, माइंड दैट द टर्शियरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बट दे प्रोवाइड सर्विसेज दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है ना। For example, transport, storage, communication, banking, okay, commerce, like that. Such and such things which are considered as tertiary sector, and that is needed. That is needed for the industrial process. Okay, industrial प्रोसेस। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में टर्शियरी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर सकता, जितना किया है ना, उसको डेवलप करने में ना, देयर इज अ वाइटल रोल दैट इज प्लेड बाय द टर्शियरी सेक्टर, है ना, सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ना, लाइक दैट। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, ये क्या करता है, माइंड दैट कि टर्शियरी सेक्टर ना जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, गुड्स
नहीं प्रोड्यूस करता है, ये सर्विस जनरेट करता है. लाइक दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. दैट्स वाई दिस सेक्टर, द टर्शियरी सेक्टर, इज कॉल्ड सर्विस sector. Primary sector agriculture, secondary sector industrial or manufacturing, or tertiary sector, that is the service sector. Okay, service sector also includes some essential services provided by professionals. Okay, professionals, that is the doctors, lawyers, teachers, barbers, etc. skilled or skilled नहीं भी, है ना. Like that in recent times certain new services based on information technology such as, है ना, recently there is a development, है ना, such as the software industry, internet cafe, ATM booths, business process outsourcing, है ना, BPO, and knowledge process outsourcing, KPO, and all centers and कॉल सेंटर्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट. आज ये कितने इम्पोर्टेंट हैं ये सब. द सच एंड सच थिंग्स which provide services and that played a vital role in a contemporary period. Okay, अब the next thing which we are going to explain that is the economic interdependence. ये क्या होता है? देयर आर वेरियस लिंकेज बिटवीन सेक्टर्स, यानी ये इंटरलिंक्ड है ना, और इंटरडिपेंडेंट है ना, फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. माइंड दैट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, है ना. फॉर एग्जाम्पल केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी सेक्टर, है ना. फर्टिलाइजर्स ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी सेक्टर, यानी इंडस्ट्रीज में, है ना, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है. लाइक दैट, है ना. सेक्टर आर कंज्यूम्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. लेकिन कंज्यूम कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्टर में. किसान ही ना खाद वगैरह को यूज करता है, लेकिन ये जो खाद जो बनता है ना, फर्टिलाइजर, ये केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, है ना, विडिसाइड, लाइक दैट. तो ये सब सारा चीज कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होता है? सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्री. That is used by primary sector, by the farmers, by the cultivators, like that. In turn, farmers buy the goods produced in the secondary sector and use the services of tertiary sector, है ना. और उसको क्या करता है ना, यूज करते हैं किसान, है ना, एंड सेकेंडरी सेक्टर को, एंड यूज द सर्विस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर. आप टर्शियरी सेक्टर को सर्विस यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, उससे तुम मंगवाते हो, यूज करते हो. तो दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ लिंक और द इंटरडिपेंडेंस, है ना. लाइक दैट, अब जो चर्चा करेंगे हम लोग, द मेन थिंग दैट इज द जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in all the three sectors in a particular year is called the gross domestic product or GDP of a country. तो उस देश का, है ना, जीडीपी कहलाता है. सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. माइंड दैट, द फाइनल गुड्स, है ना. फिर से देख लीजिए, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ना, both goods and services, but final, not intermediate goods, produce in all the three sectors. ना, तीनों सेक्टरों के द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं, all the final goods in a particular year. Okay, उस पर्टिकुलर ईयर में is called the GDP, है ना, gross domestic product of a country. Okay, GDP indicates the size of the economy of a country, है ना. GDP से ही पता चलता है कि उस अर्थ का इकोनॉमी कैसा है ना. It is the market value of the final goods and services produced by all sectors. Okay, the task of estimating the GDP, कैसे ये, how that is estimated, the GDP, है ना, how that is calculated, है ना. that is the mammoth task, the huge task to calculate all the value, the final goods of all the sectors, either the goods or the services. That is the easy task, that is the very much tough task. Okay,
The task of estimating the GDP in India is undertaken by the Central Statistical Office. Okay, mind that. ये काम कौन करता है? द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ओके, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना. एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, उसके द्वारा ये किया जाता है. दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स हाउ दैट मंत्रालय collect that. This department collects information related to total volume of goods and services with their prices to estimate the GDP. Okay, so this is the such and such information that is related to the GDP. The next thing that is also a very much important to know you or learn you for the examination point of view, that is the NSSO. Okay, NSSO क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO. What it is an organization. Okay, it is an organization under the Ministry of Statistics. Okay, स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय, मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है ना. स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज NSSO? NSSO is an organization under the Ministry of Statistics, Planning and Program Implementation, Government of India. Not Bihar Sarkar and UP Sarkar. Mind that. This is the Government of India that regularly conducts a survey on employment and unemployment. Okay, employment and unemployment 5 yearly, and figure out primary data for further use. Okay, for further use. ये NSS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ. और ये इससे संबंधित यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दूसरा जो आपको डेटा मिलता है, इतना ये विशाल भारत का, वो कहाँ से? अदर सोर्स लाइक सेंसस ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डेटा. और ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा हमें सेंसस भी प्रोवाइड करता है. तो सच लाइक दीज आर द सच एंड सच इंफॉर्मेशन. ओके, द GDP एंड NSSO. That must be needed to clear that. Okay, what they are. What do you mean by the NSSO and what do you mean by GDP? Okay, the next is the historical change in sectors. Historical change यानी पहले क्या था और आज क्या है ना. पहले किस सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस था? 3 सेक्टर्स हम लोग देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल और द मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शियरी दैट इज द सर्विस सेक्टर, है ना. तो ये इसमें चेंज देखेंगे, है ना. चेंज देखने जा रहे हैं. देखिए, जैसे नाउ सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर टुडे, है ना. आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में आपका डेटा दिया हुआ है ना. फिगर बना करके दिया है. 2 फिगर है, एक 71 का और फिर 2010 का, है ना. 2010 का यानी ये 40 साल में कितना अंतर आया है, किस सेक्टर यानी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, है ना. लाइक दैट. और एम्प्लॉयमेंट में भी, एम्प्लॉयमेंट का भी फिगर दिया है ना. ये सब हम चर्चा करेंगे. तो द शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट मीन कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस सेक्टर. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इलिमिनेट हो गया है वो, है ना, प्रीवियस सेक्टर. बट द इंपॉर्टेंस एंड डोमिनेंस ऑफ द नेक्स्ट सेक्टर इज इंक्रीज्ड, है ना. नॉट टोटली इलिमिनेटेड बट डोमिनेटेड और इंक्रीज बाय द अदर सेक्टर, ना. जैसे प्राइमरी सेक्टर पर पहले था एग्रीकल्चर, लेकिन बाद में आज क्या हो गया है? द टर्शियरी सेक्टर. तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर पूरा विलुप्त हो गया. जीडीपी में ऐसा नहीं है कि जीडीपी 1/4 का कंट्रीब्यूशन है, बट 3/4 द टर्शियरी
एंड द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी, है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, है ना, ये रोल प्ले करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर फुली ये हो गया, एलिमिनेट हो गया है। एंड एम्प्लॉयमेंट में आप देखिएगा तो मोर देन 50% people till today are employed, है ना, like that. Previous sectors, but the importance and dominance of the next sector is increased. During 1950s and 60s, mind that Indian economy dependent on agricultural, okay, agricultural and related activity. 50-60 के दशक में, है ना, हमारा जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, जो इंडियन इकोनॉमी थी, वो किस पर निर्भर था? एग्रीकल्चर पे। बिटवीन 1973 and 2003 द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली, बट मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। तीनों में हुआ, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में नहीं हुआ, उसमें भी हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बहुत सारा मेथड बदला है आपका फार्मिंग का, है ना। लेकिन इवन टुडे, है ना, जितना चेंज टर्शियरी सेक्टर में हुआ है उतना किसी सेक्टर में नहीं हुआ है, लाइक दैट। अब द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, ओके। द ग्राफ गिवन बिलो शोज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू आवर जीडीपी, है ना। अब हम देखेंगे किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, एंड व्हाट इज जीडीपी, दैट इज क्लियर, नो डाउट, ओके। तो जीडीपी इन 70-71 एंड 2010-11, ये 70-71 का देखेंगे जीडीपी, और 10-11 का जीडीपी देखेंगे। और ये जीडीपी में किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? देयर आर 3 सेक्टर्स, है ना। मेनली दे आर ग्रुप्ड into 3, primary, secondary and tertiary. And what is primary, what is secondary, what is tertiary, that is clear, no confusion. तो अब ये हम देखेंगे। द सब डिवाइडेड बार ग्राफ शोज दैट द टोटल प्रोडक्शन हैड ग्रोन मोर देन 90% ओवर द 40 years, ओके। 90% का ग्रोथ हुआ है। टोटल जीडीपी वाज ₹10, ओके, 10 lakhs crore in 70-71, है ना। That is given in your NCERT book, है ना। For the factual information, you can see the book, okay। ये 70-71 में, यानी 70-71 में जीडीपी कितना था? द 10 lakhs crore, ओके, विथ डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। उसमें कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता था? प्राइमरी सेक्टर। यानी 70-71 द जीडीपी वाज द 10 lakhs crore and dominated by primary sector, but in 2010-11 the GDP is rupees 50 lakhs crore, 50 lakhs crore, okay, 5 times more, okay, 5 times more crore with service sector as dominant, है ना। यहाँ कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है? सर्विस सेक्टर। 70-71 में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता था? एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर। तो नेवर कंफ्यूज, नेवर ओवरलैप्ड बिटवीन द सेक्टर और द एग्रीकल्चर, और द प्राइमरी और द एग्रीकल्चर, और द टर्शियरी और द सर्विस, ओके, और सेकेंडरी और द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, है ना। सच एंड सच थिंग्स। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग टर्शियरी एक्टिविटीज। क्यों ऐसा हो रहा है? वाई इंक्रीज सो मच इन टर्शियरी सेक्टर? ग्राफ को आप देखोगे नेकेड आई से आपको पता चलता है ना। 70-71 में आप देखिए ग्राफ में कितना तक जाता है? 10 तक, है ना। और यहां आप देखेंगे 10-11 में तो हमारा इकोनॉमी कितना डेवलप हो जाता है? देखिए जीडीपी कितना हो गया है, बताया ना कि 5 टाइम्स। वहां कहा 10 lakhs करोड़ था, यहाँ 10-11 में कितना हो जाता है? 50 lakhs करोड़, ओके। और 70-71 में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता था? प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर डोमिनेट करता था। और इसमें किसका रोल प्ले है? टर्शियरी सेक्टर। यहाँ टर्शियरी सेक्टर ये हो जाता है। जीडीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जीडीपी, नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ओके। कितने लोग एम्प्लॉय हैं इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। We are discussing about only and only about the GDP, okay. How much share of which of the sector, okay, in GDP, that we are
we are studying or discussing. Okay. It is due to increasing tertiary activities like banking, stocks market, exports, etc. Primary sector also increased quantitatively, that shows it can support the population and has provided a strong base for industrial growth. Okay, क्या कारण है? Rising importance of the tertiary sector. What are the causes? Why tertiary sectors improve? Okay, so over the past 40 years from 70 to 2010-11, unlike other sectors, tertiary sector has increased very much, है ना? दो सेक्टर के अनुपात में comparatively the primary and secondary tertiary sector that increased much. It emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो किसको रिप्लेस किया? प्राइमरी सेक्टर को. ओके, द रीजन फॉर सच क्वांटम इंक्रीज आर such and such. पहला, है ना, फर्स्ट थिंग, डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, डिफेंस etc. have been increased and are also fulfilled by the government to a great extent. Okay, this situation is seen in almost the developing countries, है ना. इसलिए टर्शियरी सेक्टर डेवलप किया और डेवलप कर रहा है. द सेकेंड रीजन, दैट इज द ग्रेटर डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज induced demand for service sector growth, like mining and agricultural activities needed and demand more service like transport, trade and storage, etc. The very much important reason for the growth of the tertiary sector, that is as income level of the people, रोज आज लोगों का इनकम लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है. and they demanded better quality, they demanded the better quality of life and better standard of living. Okay, like tourism, shopping, आउट ईटिंग, है ना. आज घर में नहीं खाएंगे, आज रेस्टोरेंट में जाएंगे, आज बाहर खाएंगे, लाइक दैट. तो आप घर में नहीं खाएंगे, आज आउट ईटिंग करेंगे. कैसे? पॉकेट में पैसा है, जेब में पैसा है, लाइक दैट. तो आपका इनकम बढ़ा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, लाइफ स्टाइल्स, ये सब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लाइक दैट. प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा विच इनहांस द सर्विस सेक्टर. यही कारण है कि क्या हुआ है? सर्विस सेक्टर में इन्हांसमेंट हुआ है. एंड द नेक्स्ट रीजन फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, दैट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ओके, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सर्टेन न्यू सर्विसेज हैव एंटर्ड इंडियन मार्केट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. माइंड दैट, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विच हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल्स. ओके, after the discussing of the rising importance of the tertiary sector, the next thing which we are going to see that is the employment of people in different sector. How many people are employed in which of the sector? In primary how many, in secondary how many, in tertiary how many. ठीक है, यानी ये तीन सेक्टर जो है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्शियरी, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर, एंड द टर्शियरी दैट इज द सर्विस सेक्टर. कितने लोगों को रोजी रोजगार दिया है ना, कितने लोगों को रोजगार मिला है इसमें. ओके, इसकी चर्चा अब हम करेंगे. द चेंज इन प्रोडक्शन. ओके, द चेंज इन प्रोडक्शन यानी कि शेयर इन जीडीपी, है ना, शेयर इन जीडीपी इज नॉट compatible with change in employment. Okay, the primary sector is still the larger employer in the country. उसमें चेंज नहीं हुआ है. आज भी हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अलावा और भी आपको बताया, जैसे डेयरी है, फिशिंग है, माइनिंग है, लाइक दैट, है ना, पटरी है. तो ये आज भी ज्यादा एम्प्लॉयर, आज भी इस क्षेत्र में ज्यादा एम्प्लॉयर हैं. किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर.
although the share of the primary sector in GDP of the country is just 20%, 20 or 25, है ना, approximately 1/4. But after 65 years of the independence or the 70 years, okay, it still employs more than 50% of the population, है ना. The main factor responsible for this is that the secondary and tertiary sector have not created enough jobs to enable a substantial number of people to migrate from agriculture to this sector. ऐसा क्यों हुआ है? आज भी इतने लोग को रोजी रोजगार उसमें क्यों मिला कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन नहीं हुआ उस अनुपात में. लाइक दैट, even though industrial output went up more than 9 times, okay, more than 9 times during these 40 years, है ना. इन 40 सालों में कितना ये हुआ है? 9 टाइम्स इंडस्ट्रियल का. इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है? 9 टाइम्स, ओके. और एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आउटपुट दे रहा है 9 टाइम्स, है ना. लेकिन द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट अप ओनली बाई द 3 टाइम्स, ओके. एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में 3 टाइम्स ही वृद्धि हुआ. अब उधर आउटपुट में वृद्धि कितना हो गया? प्रोडक्शन में 9 टाइम्स. माइंड दैट, 9 टाइम्स increase, but in reference of employment only by 3 times, okay. Similarly, in the service sector, although output rose by more than 14 times, 14 times, है ना. इसमें टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उसमें 14 गुना वृद्धि हुआ है, 14 टाइम्स इंक्रीमेंट, ओके. बट इन एम्प्लॉयमेंट सर्विस ओनली वेंट अप बाय 5 टाइम्स. लेकिन एम्प्लॉयमेंट को देखिए तो मात्र 5 टाइम्स ही इसमें इंक्रीमेंट हुआ है. यानी पहले अगर 5 लोग सर्विस सेक्टर में काम करते थे तो आज कितने लोग कर रहे हैं? 5 जा 25, 25 हुए, ठीक है. और उसका आउटपुट कितना हुआ है? 14 टाइम्स. अगर कोई भी चीज मान लीजिए 5 उसका ये है ना, तो कितना हुआ? 14 5 जा 70, है ना. वो ग्राफ देखो कहां जा रहा है. और एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ आप देखिए कहां जा रहा है. एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बहुत नीचे है. लाइक दैट, many of the workmen in primary sector are underemployed or disguised unemployment. ऐसा नहीं है ना. तो अब हम जो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द अंडर एम्प्लॉयमेंट और द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. कहने के लिए होता है कि भाई एग्रीकल्चर में है लेकिन वो क्या है? बेसिकली वो एम्प्लॉयड नहीं है ना. अननेसेसरली देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ओके. और उसे आउटपुट में भी कोई अंतर नहीं मिलता है, ओके. डिस्गाइज्ड उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. क्या है ये? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो अकर्स इन, कैसे आप समझ, जैसे लक्ष्मी के केस में आपके बुक में देख करके ये समझाया है ना. आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. लक्ष्मी के केस में कि कैसे ये होता है. लक्ष्मी a small farmer owns about 2 hectares of own irrigated land, okay. She is dependent only on rain and growing crops like jowar and arahar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year, है ना. लक्ष्मी के परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 लोग हैं. सारे लोग उस प्लॉट पे काम कर रहे हैं. कितना है लैंड एरिया? 2 hectares. They have nowhere else to go for work. Each one is doing some work, but no one is fully employed. सब काम कर रहे हैं, करने के लिए काम कर रहे हैं, employed हैं, but no one is fully employed. Mind that. This is the situation of underemployment. तो इसको क्या बोलते हैं? Underemployment का situation, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential, है ना. आपको उसकी potential क्या है लेकिन उससे वो कम दे पाता है. But all of the underemployment is hidden in contrast to someone who doesn't called disguised unemployment, okay, who does not have a job and is clearly visible as unemployed. No. Hence, it is also called the disguised unemployment. The such and such things, okay. Now, suppose our landlord, Sukhram,
ये सारा केस देख करके आप उसमें समझ में आएगा, हाँ, आप उसको पढ़ेंगे। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द urban area, it also occurs in cities or the towns. There are thousands of casual workers like plumber, painters, repair workers, odd job craftsmen, carpenter, etc. who search for daily employment in the towns and cities. देखते हैं यहाँ पे आपके चौराहे पे लोग ये रहता है लोग, you will find them gathered with their tools at the local labor chowk, है ना, वहाँ चौक पे रहता है, लेबर चौक पे, कि अब लोग आएगा और माने हमें रोजगार मिलेगी, हमारी रिक्वायरमेंट होगी तब, है ना, और आपको भी जिस चीज की जरूरत होती है तो आप वहां जाते हैं उस चौक पे, वेटिंग फॉर कस्टमर, है ना, कस्टमर का वेट करते रहते हैं। दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल, है ना, ये भी हो सकता है कि होल डे आप वेट किया और आपको कस्टमर ना मिला, हाँ, तो क्या उस दिन आप नहीं खाइएगा, भूखे सो जाइएगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। दीज अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व थ्रू क्रिएशन ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, तो हाउ टू क्रिएट employment more and more. Now it is important how the convert the disguised unemployment into productive human resources. Government is taking various measures to assure that. Okay, तो आज हमारी सरकार कुछ मेजर्स को ऑप्ट की है ना, इसलिए टू क्रिएट employment. Some of the measures launched or opted by our government, they are technical and institutional measures. Okay, technical and institutional measures. The second, promotion of allied agriculture, focus on small scale industries and bank credit, improvement in rural infrastructure, improvement in education and healthcare sector. Okay, like that, कि ताकि जैसे नरेगा, है ना, नरेगा की भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें 100 डेज का ये गारंटी देती है सरकार, है ना, तो लाइक सच एंड सच थिंग्स विच आर launched or opted by the government, okay, to create the employment. Technical and institutional measures, ये क्या है? Technical facilities like irrigation, availability of hybrid seeds, awareness about modern techniques of agriculture would increase the productivity of arable land and increase the requirement of human force in agriculture, है ना. Along with technical facilities, some institutional support like facilitation of necessary services, market, transportation, storage facility and other processing units in the nearby suburban area, okay, would increase employment of the farmers in other sectors, ना. तो ये एक रोजी रोजगार का दूसरा अवसर प्रदान होता है. द सेकेंड थिंग, द प्रमोशन ऑफ एलाइड एग्रीकल्चर. ये क्या है एलाइड एग्रीकल्चर? समझ लीजिए. देयर इज अ नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एज मोर देन 60% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट, है ना. 60% से ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं. फार्मर्स शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पेसिकल्चर. पेसिकल्चर क्या होता है? फिश फार्मिंग. हॉर्टिकल्चर क्या है? ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके. एनिमल रियरिंग फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, ना. द डेयरी फार्मिंग एंड द बी कीपिंग फॉर हनी along with the cultivation of crops. So these are the such and such programs or the measures which are the launched or adopted by our government to create the employment. Okay, create the employment. The next thing, the focus on a small scale industries and bank credit, है ना. यानी कि अब ये जो पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ता था किसानों को, तो सेठ से साहूकार से आप पैसे तो लेते थे, लेकिन क्या होता था? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता था. तो सरकार क्या की? ग्रामीण बैंक यानी गांव में बैंक खुलवा दी. अब वो बैंक क्या करता है? that provide loan to the farmers or the needy people at the low rate of interest.
interest. Okay. Most farmers depend on informal sources of credit like relatives and friends, traders, money lenders, etc., who charge a very high rate of interest. Okay. So setting up commercial banks to provide loan to farmers at cheaper rates will help them. Okay. By promoting cottage and small industries, है ना, हमारी सरकार की मंशा ये रही कि वहां पे क्या किया जाए, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके, इसको प्रमोट करना इन रूरल एंड सेमी रूरल एरिया विच कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना, उससे रोजगार जनरेट हो सकता है ना, एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल सेटिंग अप द राइस एंड दाल मिल्स, हाँ समझिए, है ना, कि दाल मिल, राइस मिल, है ना, तो वहां कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा ना, तो कृषि से लोग रिमूव हो करके यानी वो करेंगे, या फिर एलोंग विथ कृषि के साथ साथ वो भी कर सकते हैं, लाइक दैट, है ना, नंबर ऑफ पीपल मिल्स वेयर राइस एंड पल्सेस आर प्रोड्यूस सो दैट सम फार्मर्स कैन वर्क इन दोज मिल्स. ओके. इंप्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो, इसके लिए हमारी सरकार का क्या मंशा है. रूरल एरियाज लैक बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, warehouse, market, etc. Government should invest more in developing connectivity between villages and markets. Okay, this will provide more productive employment to farmers as well as other who are employed in services like transport and trade. Okay. And the next, which is the improvement in education and health sector. There is also a dearth of educational and healthcare facilities in the villages. Okay, a study conducted by the Planning Commission. Mind that Planning Commission, Government of India. एक प्लानिंग कमीशन है, हाँ, ये किसके अंतर्गत काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 lakhs जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशनल सेक्टर इटसेल्फ, है ना, यानी 20 lakhs, है ना, एम्प्लॉयमेंट केवल मात्र शिक्षा क्षेत्र में क्रिएट किया जा सकता है. टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ इन रूरल एरियाज वी नीड मोर डॉक्टर्स. उसी तरह हेल्थ के सेक्टर में, है ना, एजुकेशन के सेक्टर में आपने देखा 20 lakhs, है ना, प्लानिंग कमीशन का. फिर उसका आप हेल्थ सेक्टर को देखिए, है ना, more doctors, nurses and other healthcare workers. Okay, more jobs can be created especially by the addressing the important aspect of development. Along with long-term measures, government is also applying some short-term measures. Yani long-term and short-term. Long-term and short-term measures to provide immediate solution to unemployment. One such visionary step is the implementation of NREGA. Okay, क्या NREGA, National Rural Employment Guarantee Act, which was enacted in 2005. Okay, ये क्या है? The National Rural Employment Guarantee Act was formulated in 2005 and launched by the Prime Minister on 2nd February 2006. Mind that. Later on, its name changed to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. और बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. यानी नरेगा अब क्या हो गया? एमजी नरेगा, है ना, यानी महात्मा गांधी नरेगा, है ना. इसके फीचर्स क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम आर, है ना, आई एम गोइंग टू फिनिश दैट, ओनली 2 minutes. The main features of the schemes are it targets scheduled castes, scheduled tribes and the women suffering from poverty in the rural area. यानी जो ग्रामीण भारत में जो निचले तबके हैं, नीचे के लोग हैं, गरीब गुरबा, ना, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, बीपीएल वाले हैं, है ना, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, हमारी महिलाएं जो सफर करती हैं गरीबी में, है ना, उनको टारगेट करके ये किया गया है.
It provides livelihood to the people below the poverty line. Okay, जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं. The scheme guarantees 100 days. Okay, कितना दिन का गारंटीज करता है? 100 days. पहले भी आपको बताया था. 100 days recently amended to 150 days in drought hit area. और इसे अमेंड करके ड्राउट हिट एरिया में कितना कर दिया गया है? 150 days. Okay, of wage employment in a year to every rural household in 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, है ना. ये 625 जिलों में हमारे देश के 625 डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहा है. ओके, दिस ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड एंड इशू जॉब कार्ड्स टू देम, है ना. और ग्राम पंचायत स्तर पे लेवल पे ये काम हो रहा है. ग्राम पंचायत मुखिया जी लोग ये काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, है ना. जॉब कार्ड बनाते हैं और उनको देते हैं. दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टू वर्क. ओके, नरेगा इज कंसिडर एज द राइट टू वर्क बिकॉज वाई? बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार असफल होती है यानी काम नहीं है तो कहां से रोजगार मिलेगा आपको, है ना. जैसे कहीं नहर खुदवाना है, कहीं रोड बनवाना है, यू नो, अगर वहां कोई काम नहीं है, मिट्टी खुदवाना है, ये सब सच एंड सच वर्क अगर नहीं है तो तब क्या स्थिति हो ना. बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउमेंस. ओके, तो उस स्थिति में क्या करती है? बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, है ना. द टाइप ऑफ वर्क कैन बी एनीथिंग फ्रॉम रोड डेवलपमेंट, कैनाल कंस्ट्रक्शन टू एनी अदर सिमिलर वर्क विच में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड. ओके, तो दीज आर द सच एंड सच थिंग्स विच वी डिस्कस्ड today. Okay, and next thing, the remaining part of this chapter, the organized and unorganized sector and the public and private sector, that we will study in the next class. Okay, if any doubt related to this you can raise in the next class, you can ask your doubt. I will clear, I will try to solve that. Okay, thank you, have a nice day.